So, hello students, welcome to my channel. It's me Neil Ghosh, and we are going to cover the next part of our syllabus of history. ISC class 5. It will be our class number 5, and we are going to cover the chapter 1.5. So, if you are new to my channel, please do subscribe for further updates of ISC 11 and 12 history and geography syllabus. So, not only syllabus, I will cover the whole topic in one platform. So, the topics we are going to cover is, so what is the name of the chapter? You'll be eager to know. The name of the chapter is the transfer of power. So what comes under this topic? The main points are the changed attitude of the British government, cabinet mission plan and proposal of the cabinet mission, reasons for the rejection of the proposal of the cabinet mission, and direct action day observed by the Muslim League. So there are some more points we are going to cover, but first we'll come up with these 4 points, with these 5 points. So let's begin. Changed attitude of the British government. So what is the changed attitude of the British government? After the end of the Second World War, the world politics situation had completely changed. America and Russia now emerged as the big powers in the European politics. After the end of the Second World War, क्या हुआ? World political situation completely change हो गया. America and Russia big powers, मतलब they have emerged as the big powers in the European politics. The war marked an end of imperialism and rise of colonialism. So what happened after the end of the war? Imperialism का खत्म हो गया और न्यू colonialism rise हुआ. The British soldiers are not willing to stay anymore in India to suppress the Indian movements. मतलब British soldiers समझ गए थे कि हमारा दिन चला गया, क्योंकि हम और दिन नहीं रह सकते, क्योंकि Indians are so much powerful and so much dominant now over the British powers, so they cannot stop the Indian movements. They have gone back to their homeland. The trial of the INA members created troubles for all over the country. जो ट्रायल हुआ INA का, इंडियन नेशनल आर्मी का, आर्मी मेंबर का, वो एक कंट्री का एक ट्रबल हुआ. वो क्या हुआ, मतलब एक दुर्घटना क्या घटी? मेंबर्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो रॉयल इंडियन नेवी था, रॉयल इंडियन नेवी जो डिपार्टमेंट था, मतलब नेवी कौन सा है? जो पानी का था, जो वाटर आर्मीज था, उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया. Wavell Plan of 1945. So what happened in the Wavell Plan of 1945? In this change situation, ये जो बदलते हुए जो हालात है, इसमें क्या हुआ? वाइसरॉय वेवेल रिलीज्ड फ्रॉम जेल ऑल द कांग्रेस वर्किंग कमिटी मेंबर्स. वाइसरॉय ने क्या किया? रिलीज कर दिया सब कांग्रेस मिनिस्टर्स को, वर्किंग कमिटी, कांग्रेस मिनिस्टर्स ऑफ द वर्किंग कमिटी. Wavell invited all the political leaders on 24 June 1945. For what? 24 June 1945 ने Wavell invite किया सब political leaders को for the formation of the viceroy of new council. New council का जो formation के लिए उन्होंने invite किया. Indian political parties except the governor general, commander in chief. कौन कौन नहीं आया? Political parties except the Indian political parties except the governor general and the commander in chief. This is known as the Wavell Plan of 1945. So what is the role of Muhammad Ali Jinnah here? What did Muhammad Ali Jinnah did here? So they demanded for the exclusive right to nominate all the Muslim members from the Muslim League in the proposed council. मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा कि जो मुस्लिम लोग हैं उनको राइट मिलना चाहिए, उनको नॉमिनेशन मिलना चाहिए. मतलब जब इलेक्शन होगा उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनका जो रिलीजन है उसके लिए उनको नॉमिनेशन, उनको राइट चाहिए. ये बात मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रपोज किया काउंसिल में. ही ऑल्सो इंसिस्टेड फॉर हिज डिमांड फॉर हिज लॉन्ग टर्म डिमांड फॉर पाकिस्तान, बट दिस वॉज क्लेम वॉज नॉट एक्सेप्टेबल बाई कांग्रेस. ये डिमांड कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया था. सो द कॉन्फ्रेंस फेल्ड एंड नथिंग केम आउट फ्रॉम द शिमला कॉन्फ्रेंस. तो ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गया और कुछ भी आउटकम, कुछ भी कंक्लूजन नहीं आया आफ्टर द शिमला कॉन्फ्रेंस. British government would resume talks with the political parties regarding the setup of the constitution making body. British government फिर से resume किया, किस बात को resume किया, किस बात को फिर continue किया? The talks with the political parties regarding क्या मतलब points क्या था regarding the setting of the constitution making body and etc. Cabinet mission plan and proposal. So the first topic, we have done up with the first topic. What is the changed attitude of the British government? That British government are going to leave India, and they have understood that they cannot stop the Indian movements, and
the cabinet mission plan and proposals. So we'll now move to the next topic of cabinet mission plan and its proposals. So in July 1945 Labour Party came to power. July 1945 में Labour Party क्या हुआ? Came into power in Britain. There was one mission sent named as the cabinet mission. एक mission send किया गया किसके नाम पे? cabinet mission. And who has been sent for this cabinet mission? Who are the members of this cabinet mission? Pethick Lawrence, Stafford Cripps and Ivy Alexander. And Stafford Cripps had been sent to India for the cabinet mission. The mission members held extensive discussion with Congress, the Muslim League and the political parties. मिशन के मतलब कैबिनेट मिशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स पे डिस्कस किया, किस किस के साथ डिस्कस किया? इंडियन कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड द पॉलिटिकल पार्टीज. They failed to reach on any agreed settlement on the constitutional issue. मतलब जो constitutional issue जो सॉल्व करने के कैबिनेट मिशन भेजा गया था वो कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाए. ये सबसे बड़ा नाकामी था उनका. In the absence of any agreed solution, the cabinet mission announced its recommendation on May 16, 1946. तो कुछ भी मतलब conclusion निकल के नहीं आया और वो finally May 16 में 1946 को recommendation pass कर दिया, recommendation declare कर दिया, announce. So what are the proposals of the cabinet mission? Proposal क्या क्या था cabinet mission का, which has been given in 7 more points. So let's begin with the first. Any Indian federation comprising British India and the native state would be formed. मतलब नेटिव स्टेट, एनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फेडरेशन जिसमें ब्रिटिश इंडिया रहेगा, मतलब इंडियन फेडरेशन रहेगा और उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया रहना चाहिए इन एनी नेटिव स्टेट और एनी इंडियन फेडरेशन. वो एक प्रपोजल था. फिर द सेंटर वुड कंट्रोल ओनली द डिफेंस, द फॉरेन अफेयर्स एंड द कम्युनिकेशन. मतलब सेंटर क्या कंट्रोल करेगा? सिर्फ डिफेंस एक्टिविटीज़, कॉन्फ्रेंस, कम्युनिकेशंस, फॉरेन अफेयर्स एट्सेट्रा. और बाकी जो था वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव को बांट दिया गया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव ये कुछ चीज़ें जो सेंटर कंट्रोल करेगी इसको एक्सक्लूड करके बाकी सब चीज़ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव विल कंट्रोल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. द प्रोविंसेस वुड एंजॉय कंप्लीट ऑटोनॉमी एंड फॉर्म 3 ग्रुप्स. प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी था वो एंजॉय करेगा पूरा अपना जो राइट्स है, अपना जो प्रोविंशियल राइट्स है, बट within a group of three groups. What are the 3 groups? Group A, Group B, Group C. So which states have been divided into Group A, Group B and Group C? Let's see. Group A would comprise the Hindu majority provinces. मतलब Group A में क्या रहेगा? Hindu majority provinces जैसे कि CP, उत्तर प्रदेश, मद्रास, बिहार एंड उड़ीसा. मतलब हिंदू डोमिनेटेड, हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स. The chief commissioner provinces are Delhi, Ajmer, Merwara and Coorg would join ग्रुप ए. सो ये तो ग्रुप ए था. और ग्रुप बी क्या था? मुस्लिम मेजोरिटी था. ग्रुप बी में क्या क्या था? ग्रुप बी में पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बालूचिस्तान एंड सिंध. तो हम ये लोग मतलब ये सब जानते हैं कि ये सब स्टेट, ये सब जो प्रोविंसेस है ये मुस्लिम मेजोरिटी, मुस्लिम डोमिनेट प्रोविंसेस है. और ग्रुप सी में क्या रहेगा? बंगाल एंड आसाम. ग्रुप सी वुड ओनली कॉम्प्राइज द 2 स्टेट्स बंगाल एंड आसाम. एविडेंटली ग्रुप बी एंड ग्रुप सी would be under the control of the Muslims. Each group, number 4 point, each group had the right to option out of the federal union. मतलब एक एक ग्रुप के जो स्टेट है उनको एक ग्रुप को पूरा हक है कि वो अगर चाहे तो फेडरल यूनियन के बाहर वो ऑप्शन आउट कर सकते हैं, ऑप्ट आउट कर सकते हैं. आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन के बाद जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा तब each group would settle down its own constitution. So what is the 5th point? For the election of the constitution making body, 3 main circumstances are been put down. General all person were not Muslims or Sikhs. सब person तो मुस्लिम और सिख नहीं हो सकते ना, वो भी ध्यान में रखना होगा. Muslims and Sikhs were recognized. Each group would elect its own representative by the method of proportional representation. Proportional representation के तहत each group के representative को select किया जाएगा. Constitution making body would conclude a treaty with the Great Britain. Constitution making body एक treaty organize एक treaty conclude करेगा with Great Britain to provide certain matters. मतलब कुछ मैटर्स में वो बात कर सके, कुछ मैटर्स में वो डिस्कशन कर सके, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ पावर. इंडिया वुड बी फ्री टू डिसाइड वेदर इट वुड रिमेन विद द ब्रिटिश Commonwealth or secede from it or option out from it or opt out from it. So last point, the 7th number point is during the constitution making body, the cabinet mission proposed the formation of an interim government and the center with the support of the major political parties in India. तो क्या कहा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार होगा, कैबिनेट मिशन जब प्रपोज होगा, कैबिनेट मिशन जब
तैयार होगा, जब फॉर्म्ड होगा, तो इंटरिम गवर्नमेंट कहाँ रहेगा, मतलब सेंटर में रहेगा इंटरिम गवर्नमेंट, जो मेजोरिटी चीज़ को, जो मेजोरिटी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको कंट्रोल करेगा। और कौन सपोर्ट करेगा उसको, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो रहेगा इंडिया में वही सपोर्ट करेगा। So moving on to the next part, the rejection of Pakistan demand. Why did Pakistan rejected the cabinet mission demand? With Muhammad Ali Jinnah rejected the Pakistan demand on the basis of two nation theory. So the cabinet mission has been rejected by Pakistan on the following grounds. Cabinet mission pointed out a full-fledged Pakistan, which was impossible since it would include a very large number of non-Muslims of Bengal and Assam. Cabinet mission pointed out, cabinet mission ने क्या point out किया, full-fledged Pakistan उनको चाहिए, which was impossible because it would include a lot of parts, a lot of provinces of Bengal and Assam where a majority people are non-Muslims. Muslim League demanded Pakistan ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब वो मुस्लिम है उनको इसलिए पाकिस्तान चाहिए। तो फिर हिंदू भी बोलेंगे हम हिंदू है इसलिए हमको बंगाल चाहिए। फिर सिख भी बोलेंगे, मतलब जो पंजाबी है वो भी बोलेंगे कि हम पंजाबी है तो हमको अम्बाला और जलंधर भी चाहिए। तो सबको सब कुछ चाहिए फिर। सो what is the third point? Said the partition of Bengal and Punjab would go against the deep-seated regional ties. सो टू नेशन थ्योरी कौन लाया था? मोहम्मद अली जिन्ना। तो पाकिस्तान, तो बंगाल एंड पंजाब वुड गो अगेंस्ट, मतलब बंगाल एंड पंजाब अगेंस्ट हो जाएगा किसके अगेंस्ट? और पाकिस्तान इन द डीप सीटेड रीजनल टाइज विच वुड क्रिएट अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, जिसके तहत बहुत इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम फ्यूचर में होने वाला है। The two halves of the proposal Pakistan would be separated by almost 700 miles and this would create problems. मतलब 700 miles में पाकिस्तान डिवाइड होगा which would create a problem. Geographically it not viable. Intention of the cabinet mission. Cabinet mission का क्या intention था? Plan placated the Congress through the rejection of Pakistan scheme. मतलब प्लान ऐसे तरह से प्लेकेट किया गया था, ऐसे तरह से डिज़ाइन किया गया था कि कांग्रेस को रिजेक्ट करना पड़ेगा और रिजेक्ट किया भी पाकिस्तान स्कीम को। It tried to pacify the Muslim League through the creation of autonomous Muslim majority areas in some proximity. मतलब ये थोड़ा रीडिंग पढ़ लीजिएगा, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दो पॉइंट और फिर रिएक्शन अगेंस्ट द कैबिनेट मिशन प्लान। क्या क्या रिएक्शन तो वो आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जैसे कि कंट्रोवर्सी ओवर द ग्रुपिंग ऑफ प्रोविनस, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ कांग्रेस लीग पैरिटी वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द कांग्रेस, मतलब कांग्रेस को इंटरिम गवर्नमेंट का जो प्रपोजल था प्रिंसिपल ऑफ कांग्रेस वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये सब जो पॉइंट है ये सब आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। लीग एक्सेप्टेंस ऑफ द मिशन प्लान, ऑपोजिशन ऑफ पंजाब कौन था, लीग क्यों एक्सेप्ट किया मिशन प्लान को, डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द डिप्रेस क्लास का डिफरेंट व्यूज़ क्या क्या था वो भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीडिंग पढ़ लीजिएगा अच्छे से थॉरली। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई इज द डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व बाय द मुस्लिम लीग। सो इट्स आवर रिजेक्शन ऑफ द प्रपोजल, क्यों रिजेक्ट किया गया था ये भी हम पढ़ लिए। प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन क्या था, और डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व बाय द मुस्लिम लीग, व्हाई डायरेक्ट एक्शन डे हैज बीन ऑब्जर्व बाय द मुस्लिम लीग, ये भी अब हम पढ़ेंगे। सो दे डेवलप्ड ए क्राइसिस व्हेन इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड इन जुलाई, मतलब एक क्राइसिस हुआ था जब जुलाई 1946 में एक इलेक्शन हुआ। क्या क्राइसिस था? कांग्रेस वोन इन ओवरवेल्म मेजोरिटी, कांग्रेस बहुत मेजोरिटी सीट से जीता भी था, लेकिन जो क्राइसिस था वो किस लिए था? apprehended that the transfer of power, Jinnah became alarmed and called a brute majority of the Congress. जिन्ना को अलार्म मिला, जिन्ना को वो अवेयरनेस मिला और वो क्या कहा था कि ब्रूट मेजोरिटी ऑफ द कांग्रेस, ट्रांसफर ऑफ पावर वुड मेड ओनली विद द कांग्रेस ऑफ द हिंदूज हु एंजॉयड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पीपल, मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर वुड बी मेड ओनली विद द कांग्रेस और हिंदूज जो एंजॉय करता था कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल। सो Jawaharlal Nehru for the formation of interim government, Jinnah refused to join the interim government. Jawaharlal Nehru जब फॉर्म किया interim government को तो Jinnah had refused to join the interim government. Muslim League then incited the Muslims to direct action. फिर Muslim League ने क्या कहा कि हम direct action day observe करेंगे, which was insisted by the Muslim League, and League had decided to observe 16th August 1946 as the direct action day. मतलब वो जो oppose कर रहे थे उसलिए एक डे को ऑब्जर्व किया गया, एक डे को चुना गया कि वो डे ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे होगा 16 अगस्त 1946 फॉर द रियलाइजेशन दैट द डिज़र्ट गोल ऑफ पाकिस्तान की, किस रियलाइजेशन के लिए कि हम लोगों का मुस्लिम का डिज़र्ट गोल क्या है? क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। लिक्वत अली खान द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे एंड सेड, मतलब लिक्वत अली खान जो जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, वो क्या कहा डायरेक्ट एक्शन डे को? डायरेक्ट एक्शन मीन्स रिसोर्टिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एंड
take and then can take any form and whatever form may suit the condition under which we live. तो उनके तहत क्या कहा गया था कि डायरेक्ट एक्शन का मतलब है रिस्टोरिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स विच कैन टेक एनी फॉर्म whatever form which may suit under any circumstances which we live. So the Muslim population of Bengal know very well that direct action day would mean and so need not to bother to give them any lead. मतलब बंगाल के जो मुस्लिम थे, मुस्लिम पॉपुलेशन थे, उसको अच्छे से पता था कि डायरेक्ट एक्शन डे वुड मीन एंड सो वी नीड टू बॉदर, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है और वी डोंट नीड टू बॉदर इट एंड लीड इट आउट. सो ये जो लास्ट का पैरा है वो थोड़ा आप रीडिंग पढ़ लीजिएगा. तो क्या था नेक्स्ट पॉइंट, जो कम्युनल राइट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. व्हाट आर द कम्युनल राइट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विल नाउ लीड टू इट. Direct action day in the communal rights in different parts of the country. What happened? The direct action day was followed by the slogan लड़के लंगे पाकिस्तान. ये क्या बोल दिया मैंने? We shall have Pakistan by force. मतलब इसका मतलब क्या है? We shall have Pakistan by force. मतलब हम लोग को पाकिस्तान का फोर्स, पाकिस्तान का पॉपुलेशन, पाकिस्तान का मासेस का हेल्प चाहिए to discover our state Pakistan. The day passed off without much untoward incident in most part of the country except in Calcutta where trouble started. मतलब कलकत्ता में ट्रबल शुरू हो गया था. The Muslim government of Bengal under Subhrawardi moved in sluggish way. In the meantime, huge population of both Hindu and Muslim were killed. मतलब in the meantime बहुत मुस्लिम और हिंदू को मारे गए. Under Subhrawardi moved in sluggish way, मतलब sluggish way में मूव किया, इसलिए बहुत हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगा हुआ और इसलिए इसके लिए बहुत many of the Muslims and Hindu have been killed. Starting from Calcutta, communal rights touched Bombay, spread to Noakhali in East Bengal, Bihar, Garmuketeshwar in UP, and finally reached Punjab in March 1947 onwards. फॉर्मेशन ऑफ पंजाब में रिसेंटली क्या हुआ आपको तो पता ही है, सिद्धू मूसेवाला का देहांत हो गया. मतलब हंसने की कोई बात नहीं है लेकिन बहुत दुखद एक खबर है. तो चलिए नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट. तो ये जो पैरा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप थोड़ा रीडिंग पढ़ लीजिएगा. कुछ भी नहीं कि आफ्टर द रिफ्यूजल ऑफ द मुस्लिम लीग टू ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट फिर क्या हुआ. वाइसरॉय इन्वाइटेड जवाहरलाल नेहरू एंड दिस मेंबर टू एज द वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑन 2 सितंबर 1946. तो ये दो पैरा आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा थॉरली पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा. Moving on to the next topic of our Attlee's declaration on 20th February. What have been Attlee declared on 20th February? The interim government was not functioning well due to non-cooperation of the Muslim League. Interim government was not functioning well. अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू नॉन कॉर्पोरेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग का अच्छा कॉर्पोरेशन नहीं मिल रहा था. द कंट्री वॉज पासिंग थ्रू कम्युनल राइट्स एट डिफरेंट प्लेसेस. पता ही है हमको. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 20 फरवरी 1947 दैट द गवर्नमेंट वुड ट्रांसफर पावर टू इंडियंस नॉट लेटर देन जून 1948. कि गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा पावर इंडियन गवर्नमेंट को नॉट लेटर देन, मतलब जून 1948 से पहले उनको पावर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. Lord Mountbatten now came to India to take charge as the Viceroy, Governor General from Lord Wavell. Of Lord Mountbatten, India आए to take the charge. So, what is the Mountbatten plan? So, Lord Mountbatten took charge in March 1947. Lord Mountbatten has took charge in March 1947. He started discussion with the leaders of the Congress and the Muslim League for transfer of power. उन्होंने डिस्कस किया लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस की अबाउट द ट्रांसफर ऑफ पावर, क्या क्या हुआ, क्या क्या करना पड़ेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. द मेन प्रोविजन ऑफ द प्लान वेर एज फॉलोज. क्या क्या था मेन प्रोविजन? न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान वुड बी क्रिएटेड एलोंग विथ फ्री इंडिया. मतलब पाकिस्तान का स्टेट तो क्रिएट किया जाएगा एलोंग विथ अ स्टेट ऑफ फ्री इंडिया, एलोंग विथ अ कंट्री ऑफ फ्री इंडिया. द मेन फीचर्स ऑफ द माउंटबेटन प्लान आर इंडिया वुड बी पार्टीशन एंड द न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान वुड बी क्रिएटेड एलोंग विथ फ्री इंडिया. मतलब इंडिया को पार्टीशन किया जाएगा और पाकिस्तान स्टेट भी क्रिएट किया जाएगा फ्री इंडिया के साथ, मतलब अलग तरीके से अलग जगह पर. पाकिस्तान वुड बी फॉर्म्ड विद द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस. हमको पता ही था पाकिस्तान फॉर्म होगा विद द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, सिंध, बालूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वेस्ट पंजाब एट्सेट्रा. Indian dominion would be formed with the rest of British India, East Punjab and West Bengal. तो इंडियन डोमिनियन कहाँ रहेगा? डोमिनेशन ऑफ पावर ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट पंजाब एंड वेस्ट बंगाल. A boundary commission would be formed to demarcate the exact boundary between India and Pakistan. एक boundary commission तैयार किया जाएगा to exaggerate, to separate, to know the exact boundary of India and Pakistan.
फिर क्या, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड साइलेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम टू डिसाइड वेदर द पीपल वुड जॉइन इंडिया और पाकिस्तान। उनको एक ऑप्शन दिया गया, नेटिव स्टेट्स वर गिवन द ऑप्शन टू जॉइनिंग आइदर द न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान और द ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया, और वुड रिमेन इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। The Legislative Assembly of Sindh would take its own decision whether it would join India or Pakistan. So, the Lord Mountbatten Plan had been given the option to every native states that either they could remain independent or join the new state of Pakistan, or can join the old state of India. और लास्ट टॉपिक क्या है, द प्लान ऑल्सो डिमार्केटेड द ट्रांसफर ऑफ पावर वुड टेक प्लेस मच अर्लियर देन जून 1948। ट्रांसफर ऑफ पावर जून 1948 के बहुत आगे होने वाला है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वुड पास एन एक्ट टू ट्रांसफर पावर इन इंडिया बिफोर 15 अगस्त 1947। यहाँ पर ही हम लोग का इंडिपेंडेंस मिला था 15 अगस्त 1947 को, और उससे पहले बोला गया कि पावर ट्रांसफर किया जाना पड़ेगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, द इंडिपेंडेंस। नाउ विल नो अबाउट हाउ our country had got independence. We have completed the Lord Mountbatten Plan, and now we have left up with the two topics, the main two topics, the Indian Independence Act. Sorry, there was a mistake here. The Indian, आपको समझ आ रहा है तो, the Indian Independence Act of 1947. So what happened in the Indian Independence Act of 1947? The nationalist leader refused to agree to hand over 1/3 of the country to Muslim League for Pakistan. मतलब nationalist जो लीडर थे वो रिफ्यूज़ कर दिया कि हम 1/3 ऑफ द कंट्री हम मुस्लिम को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इंडिया वॉज डिवाइडेड बट मैक्सिमम यूनिटी वॉज रिटेन। इंडिया डिवाइड तो हुआ लेकिन मैक्सिमम यूनिटी रिटेन रह गया। Pakistan was accepted, but it would be made as small as possible to uphold Congress stand on unity. पाकिस्तान तो तैयार तो हो गया, पाकिस्तान एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन इंडिया का जो एरिया है तो वो बहुत छोटा हो गया और कांग्रेस वही एरिया को एक्सेप्ट कर रहा था। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग अल्टीमेटली एक्सेप्टेड द माउंटबेटन प्लान। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग अल्टीमेटली क्या कर दिया, माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर दिया। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वाज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 1 जुलाई 1947। इट वाज रिसीव्ड अ रॉयल असेंट ऑन 18 जुलाई 1948। मतलब बिल को जो पास मिला, बिल को जो मतलब पास मिलता है ना कि सब मेजोरिटी बिल अगर साइन कर दे तो वो बिल पास हो जाएगा, तो वो कब मिला, रॉयल असेंट वाज बीन रिसीव्ड ऑन 18 जुलाई 1947, बट बिल वाज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 1 जुलाई 1947. In the independent dominance, India and Pakistan would be created on 14th and 15th August. It was also been mentioned, it was also been partitioned that the independent dominance of India and Pakistan would be created on 14th and 15th August of 1947. So how had been the Mountbatten Plan had been executed? Bengal and Punjab assemblies had been given the right to separately एंड टेक डिसाइड। मतलब बंगाल और पंजाब को सेपरेट कर दिया गया पहले, और उनको फिर राइट दिया गया, ऑप्शन दिया गया कि आप डिसाइड करिए आप कहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे कि कुछ प्लेबिसाइड जो कुछ पार्ट्स थे, कुछ प्रोविजन थे बंगाल और पंजाब का, साइलेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, चूज टू जॉइन ईस्ट पाकिस्तान, NWFP, द बाउंड्री कमीशन एंड द ब्रिटिश लॉयर Ratcliffe started making boundary lines of the two states of India and Pakistan। मतलब रैटक्लिफ ने क्या किया, बाउंड्री लाइंस क्रिएट करना शुरू किया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इन द प्लेसेस ऑफ द, मतलब मुस्लिम मुर्शिदाबाद, पंजाब, मुर्शिदाबाद एंड नोदिया स्ट्रांगली डिसेंटेड द लॉस ऑफ गुरदासपुर एज वेल एज कैलकाटा इन बंगाल। सिमिलरली वो कुछ नाम थे कि 6 रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ लाहौर। मतलब वो सब रिप्रेजेंट कर रहे थे कि क्या क्या लॉस हुआ। 6 रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ लाहौर, द कैनल कॉलोनीज, द खुलना एंड द चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स। मतलब मेरा जो कैमरामैन है वो बहुत फ़ैन है पंजाब के लिए, उनका कुछ फीलिंग्स है, इसलिए जब भी मैं बोलता हूँ सिख, पंजाबी, गुरदासपुर, पंजाब, फिर उनको कुछ फीलिंग्स उनके निकलते हैं, पता नहीं क्या है, फ़ैन होंगे कुछ किसी लोग का। इन दिस वे पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल एलोंग विद इंडिया वॉज कम्प्लीट। मतलब ऐसे ही इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन कंप्लीट हुआ। सो द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाई डिड कांग्रेस एक्सेप्टेड द पार्टीशन। Why did Congress has accepted the partition? There were a number of reasons. They accepted the Mountbatten Plan to get quickly at the cost of Pakistan। मतलब उनको बहुत क्विकली पावर चाहिए था एट एनी कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। मतलब उनको पावर चाहिए था, इसलिए माउंटबेटन प्लान जब उनको पावर प्रोवाइड किया कि वो अलग स्टेट हो पाएंगे, फ्री इंडिया हो पाएगा, तो इमीडिएटली वो एक्सेप्ट कर लिया कि येस इट वॉज गुड फॉर मी।
There was a basic failure of the entire Congress organization over the years to bring the Muslim masses into nationalist mainstream. मतलब कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन था, एक बहुत बड़ा मिस्टेक था कि ईयर आफ्टर ईयर कांग्रेस मुस्लिम्स को कॉमन मासेस में ला रहे थे इन द नेशनलिस्ट स्ट्रीम. In 1946 it became clear that Muslim masses stood behind the Muslim League for the demand of Pakistan, but Muslim masses did not. मुस्लिम मास क्या किया, ऊपर से दिखाने के लिए कांग्रेस को कि हाँ हाँ हम तो नेशनलिस्ट मूवमेंट में है, लेकिन अंदर से वो लोग सपोर्ट कर रहे थे डिमांड ऑफ पाकिस्तान, मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे थे. दे इवन फॉट फॉर ऑन द स्ट्रीट्स फॉर द डायरेक्ट एक्शन कॉल. There was a breakdown of interim government due to non-cooperation of the league. The interim government failed to control the organized mob violence of the Muslims. मतलब बहुत violence हुआ, बहुत दंगा हंगामा ये सब हुआ. Liaquat Ali Khan, there was a transfer of power which would save the situation. Constant interfaces of Liaquat Ali Khan, finance minister from the Muslim League, created an unhealthy situation. Congress and leaders thought it was a wise to accept, then it was open war. मतलब Liaquat Ali Khan, finance minister from the Muslim League, एक unhealthy situation create कर दिया था, लेकिन उन्होंने क्या लक्ष्य रखा, क्या होप किया कि हम ये एक्सेप्ट करेंगे पाकिस्तान, ये पार्टीशन वार और वार खुल दीजिए, मतलब वार होने से तो हो जाए. कांग्रेस लीडर वुड एक्सेप्ट द पार्टीशन रेदर देन वार. मतलब जो युद्ध नहीं चाहिए हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जो भी है हमको युद्ध नहीं चाहिए पाकिस्तान से, हमको पाकिस्तान से छुटकारा चाहिए और हमको फ्री इंडिया चाहिए, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लिए. Alternative was also been provided to Pakistan, which was a federation with the weak center. The bitter experience of working with the league minister, total breakdown of the administration, मतलब सब कुछ तहस नहस होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन भी ब्रेकडाउन हो गया, लीग का मिनिस्टर भी मतलब एक बिटर, एक अलग मतलब बुरा एक्सपीरियंस हुआ उनके साथ. एटीट्यूड ऑफ द इशू ऑफ पाकिस्तान का इशू था, जिन्नस अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड ऑन द इशू ऑफ पाकिस्तान. कांग्रेस लीडर्स टू एग्री द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मतलब सब कुछ कैसे कि उलट पलट हो गया. So we have completed with the last two topics, the Indian Independence Act of 1947 and the reasons why Congress accepted the partition. Topic, the role of the British government. So what is the role of the British government? ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब हम लोग का जो मतलब मेन टॉपिक था वो है व्हाई द कांग्रेस हैव एक्सेप्टेड द पार्टीशन, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, तो वो हम तो पढ़ लिए. बट तो क्या क्विकली उनको पावर चाहिए था इन ऑल्टरनेटिव टू पाकिस्तान, इन द स्टेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान स्टेट, उनको क्विकली फ्री इंडिया चाहिए था. तो रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ये थोड़ा आप खुद से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा रीडिंग कर लीजिएगा तो हो जाएगा. जैसे कि पार्टीशन वाज हाईली कंट्रोवर्शियल अरेंजमेंट एंड रिमेन्स द कॉज ऑफ मच टेंशन फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इवन टुडे. मतलब अभी भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस पार्टीशन के लिए अभी भी टेंस सिचुएशन एक क्रिएट हुआ है. सम क्रिटिक्स एलिग द ब्रिटिश हेस्ट लीड टू क्रूअल्टीज ऑफ द पाकिस्तान बिकॉज इंडिपेंडेंस वाज डिक्लेयर्ड प्रायर टू एक्चुअल पार्टीशन. मतलब इंडिपेंडेंस बहुत पहले डिक्लेयर कर दिया गया, एक्चुअल पार्टीशन डेट से पहले जुलाई में करने को बोला था, लेकिन जून 15 में हो गया. सो ऐसे ही कुछ है, तो अब थोड़ा थोड़ी वो रीडिंग कर पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा. सो वी विल कंटिन्यू आवर क्लास विद द क्वेश्चन आंसर्स. सो बी रेडी विथ योर पेन एंड पेंसिल. In which year was the cabinet mission plan announced? 16 May 1946. Cabinet mission plan had been announced on 16 May 1946. When did cabinet mission come to India? Which year? In the year 1945, cabinet mission had come to India. Which British Prime Minister sent cabinet mission to India? Clement Attlee. Clement Attlee had sent cabinet mission to India. Who were the members of the cabinet mission? हम पढ़े थे Sir Stafford Cripps, Patrick Lawrence and A.V. Alexander. वो तीन नाम वो थोड़ा आप नोट डाउन कर लीजिएगा. How many groups were proposed by the cabinet mission? There were 3 groups, Group A, Group B, Group C. And keep learning and keep exploring. So please do subscribe to my channel. If you like the video, hit the like button and share it with the ones who need it. So see you in the next video. Till then, keep safe and keep learning.